Hello friends, welcome back to video series of artificial intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to discuss machine learning in artificial intelligence. This topic is very important for your GATE examination as well as your university examinations. So let's get started. As today's topic is machine learning, you know that what is the meaning of learning. Learning means to learn something and to get the knowledge and store in our brain. Okay, now in today's lecture we are going to discuss how to make a machines which can learn itself. Okay, so let's start. Learning denotes a change in the system that enables a system to do the same task more efficiently in the next time. Okay, this is the quote given by the Herbert Simmons in 1983. Okay, now the learning is nothing is what learning is nothing about the we are going to update our knowledge so that we can perform better and more efficiently in the next time. So what is machine learning? Suppose we have a computers or machines which work on instructions, but can machine also learn from the experience or past data just like a human beings work? जैसे कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग वर्क करता है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस डेटा का यूज करते हुए खुद ब खुद लर्न करता है और अपने जो भी आने वाले टास्क है उसको इफिशिएंटली परफॉर्म करता है और इफिशिएंटली लर्न करते हुए वर्क करता है, इफिशिएंटली परफॉर्म करता है और इफिशिएंटली वर्क करता है. So here comes the role of the machine learning. Just like human being, can the machine learn from previous experience or previous past data? तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में मशीन लर्निंग ये टॉपिक आया है, मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजी है. जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग वर्क कर सकता है तो क्या मशीन और जो रोबोट्स और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उस तरीके से खुद ब खुद अपना लर्निंग कर सकता है ताकि अपना जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सके. So that is nothing about the machine learning. Now let's discuss the theoretical definitions of machine learning. So what is the machine learning? Machine learning is said to be a subset of artificial intelligence that is mainly concerned with the development of algorithms which allow a computer to learn from the data and the past experience on their own. मशीन खुद ब खुद अपना पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा का यूज करते हुए यूजिंग अल्गोरिदम्स वो अपना खुद ब खुद लर्निंग कर सकता है या नहीं कर सकता. That is nothing about the machine learning. The term machine learning was first introduced by Arthur Samuel in 1959. We can define the summarized way as machine learning enables a machine to automatically learn from the data, improve the performance from the experience and predict things without being explicitly programmed. मतलब हमें उस मशीन को उस तरीके से प्रोग्राम भी नहीं करना है और वो ऑटोमेटिकली अपना डेटा का या फिर पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करते हुए खुद ब खुद लर्न करता है और अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है विदाउट राइटिंग अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम. How does the machine learning works? Machine learning system learns from the historical data, buildings of prediction models and whatever it receives a new data predict the output for it. जैसे कि हम लोगों ने इन्फेरेंस मैकेनिज्म पढ़ा था जिसमें हमारे पास में नॉलेज होता है, नॉलेज का यूज करते हुए हम नए प्रेडिक्शंस निकालते हैं. तो अगर मैं नया प्रेडिक्शंस निकालता हूँ उसको एनालाइज करते हुए क्या मैं इसको बेहतर तरीके से निकाल सकता हूँ क्या? तो इस तरीके से अगर हमारी प्रोग्रामिंग रही और वो मशीन्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नए प्रेडिक्शंस निकाल सकती है और नए प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग नए मॉडल्स को डेवलप कर सकती है, दैट थिंग वर्क्स ऑन मशीन लर्निंग. तो ये किस तरीके से होगा? मशीन के पास में बहुत सारा डेटा होता है जो कि होता है हमारा हिस्टोरिकल डेटा, मॉडल्स, नॉलेज बेस, ये सारा का सारा हमारा डेटा होता है. दैट कम्स टू द इनपुट डेटा दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग सेट. here we have to apply the machine learning algorithms. इसी algorithm के basis पे हमारा machine work करेगा और हम खुद machine खुद ब खुद learn करेगा. So learn from the data, जो भी हमारे पास में previously data होगा, training set होगा जिसका use करते हुए machine उसमें से कुछ नए predictions निकालेगा, कुछ नए improvements निकालेगा and उसका use करते हुए एक logical model बनाएगा. ओके अब लॉजिकल मॉडल बनने के बाद में कुछ नए प्रेडिक्शंस निकलेंगे और उस प्रेडिक्शंस वो जो नए प्रेडिक्शंस होंगे वो आपके आउटपुट होंगे. सो दैट इज नथिंग अबाउट द मशीन लर्निंग. Now, what is the features of machine learning? Machine learning uses the data to detect the various pattern in the given data sets. Machine learning बहुत जगह पे यूज हो रही है जैसे कि आप डेटा साइंस आप देख सकते हो. डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप डेटा का यूज करते हुए नए प्रिडिक्शंस और नए पैटर्न्स का डिस्कवर करते हो और अपने कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो. सो दैट विल वर्क ऑन डेटा साइंस.
ठीक है। सो दैट कम्स अंडर द डेटा साइंस। तो ये चीजें हैं, मतलब डेटा माइनिंग हो गया, फिर डेटा साइंस हो गया, ये सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर वो वर्क करते हैं। इट कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा एंड इम्प्रूव इट ऑटोमेटिकली। इट इज अ डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। यस, ऑब्वियसली, जैसे कि अगर हमारे पास में प्रीवियस डेटा और पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कुछ नया आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो मशीन के पास में भी हमें डेटा देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, तभी जाके मशीन खुद ब खुद उस डेटा को एनालाइज करके लर्न कर पाएगी। Machine learning is much similar to the data mining as also deals with a huge amount of data. जस्ट लाइक अभी एग्जाम्पल में बताया कि डेटा साइंस और डेटा माइनिंग में जिस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हुए हम नए प्रेडिक्शंस निकालते हैं, उसी तरीके से मशीन लर्निंग भी वर्क करता है। बट यहाँ पे मशीन लर्निंग के अल्गोरिदम्स यूज होने वाले, प्रोग्राम्स यूज होने वाले, जो कि मशीन को खुद ब खुद समझाएंगे और खुद ब खुद नॉलेज देंगे, लर्न करवाएंगे कि हमें ये जो प्रेडिक्शंस निकले हैं ये इसका कहाँ पे यूज करना है और किस तरीके से हम इसका परफॉर्मेंस बिल्डिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। Okay, now why we need the machine learning? What is the need of machine learning? As a human, we have some limitations. We cannot access the huge amount of data manually. So for this, we need some computer systems. As here comes with the machine learning to make things easy for us. हमारे पास में जो बहुत बड़ा डेटा होगा, बहुत बड़े डेटा को हम मैन्युअली एक एक करके प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर वही चीजें मशीन्स ऑटोमेटिकली और इजीली और इफिशिएंटली करके देती है तो हम मशीन का यूज करेंगे। तो अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम मशीन का यूज करेंगे। बट मशीन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस तो निकालेंगे और मशीन खुद ब खुद उसमें एक्सपर्ट हो जाए, उसमें खुद ब खुद लर्न करना सीख जाए, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, दैट्स वाई वी नीड अ मशीन लर्निंग, रैपिड इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डेटा, solving the complex problems which are difficult for the human beings, decision makings in a various sectors including the finance, market, banking, okay, finding the hidden patterns and extractions useful information from the data, just like genetic algorithm है हमारे पास में इमेज प्रोसेसिंग है, वहाँ पे हम बहुत सारा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो उस समय में अगर मशीन ऑटोमेटिकली ये सब कुछ करके देता है तो बहुत अच्छा होगा। सो दैट is a requirement or need of machine learning. Now, how I can classify the machine learning? So let's discuss the classifications of machine learning. At broad level, machine learning can be classified into a three types. First one is supervised learning, second one is unsupervised learning, and third one is reinforcement learning. ठीक है, अब मशीन लर्निंग के तीन टाइप्स है बेसिकली, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये हम एक एक करके देखेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है। ठीक है, ये चीजें हम सामने में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सुपरवाइज लर्निंग। Supervised learning is a type of machine learning method in which we provide the sample level data to a machine learning system in order to train it, and on that basis it predict the output. Supervised learning में होता क्या है, यहाँ पे जो यूजर डेटा फीड करवाएगा वो लेबल होगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मशीन्स को देना पड़ेगा, तब जाके उसका यूज करते हुए मशीन्स एक प्रेडिक्शंस निकालेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। द गोल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग इज टू मैप द इनपुट डेटा विद द आउटपुट डेटा। ओके, द सुपरवाइज लर्निंग इज बेस्ड ऑन सुपरविजन, मतलब यहाँ पे ह्यूमन का सुपरविजन लगेगा कि किस तरीके से आपको लर्न करना है। यहाँ पे आपको गाइडेंस देना पड़ेगा उस मशीन को कि किस तरीके से लर्न करना है। एंड इट इज द सेम एज व्हेन द स्टूडेंट लर्न्स द थिंग्स एंड इन द सुपरविजन ऑफ टीचर। जस्ट लाइक हम टीचर्स स्टूडेंट्स को जस्ट लाइक हम स्टूडेंट को जिस तरीके से पढ़ाते हैं, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आपको एक गाइडेंस लगता है किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताना होता है। उसी तरीके से हम मशीन्स को या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से लर्निंग करनी है, आपको कौन सा, आपके लिए कौन सा डेटा और कौन सा लेबल डेटा इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे प्रेडिक्शंस निकालनी है। दैट इज कम्स अंडर द सुपरवाइज लर्निंग। द एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इज स्पैम फिल्टरिंग। जिस जिस तरीके से आप ईमेल यूज करते हो तो ईमेल में हम स्पैम को फिल्टर करते हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ईमेल जो है खुद ब खुद समझ जाता है कि ये जो मेल है आपका स्पैम में चले जाना चाहिए। तो सुपरवाइज लर्निंग के भी दो टाइप है, एक है क्लासिफिकेशन एंड दूसरा है रिग्रेशन। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। लर्निंग इज अ लर्निंग मेथड इन विच मशीन लर्न्स विदाउट एनी सुपरविजन, मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन नहीं होगा।
यहाँ पे ह्यूमन बींग्स मशीन्स को नहीं समझाएगा कि आपको किस तरीके से लर्न करना है। मशीन ऑटोमेटिकली आपका डेटा को एनालाइज करेगी और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस निकालना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशंस ह्यूमन बीइंग का नहीं होगा। द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू अ मशीन्स विद द सेट ऑफ डेटा दैट हैज नॉट लेबल्ड मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड होगी उसको लेबल नहीं किया जाएगा। क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड, okay, not labeled, classified or categorized, and the algorithm need to act on that data without any supervisions. Okay, that's why it is called as unsupervised learning. In unsupervised learning we don't have a predetermined result. The machine tries to find the useful insights from the huge amount of data. मतलब मशीन क्या करेगा कि जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल होगा उसमें से प्रेडिक्शंस निकालेगा और उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास में अवेलेबल है वो चेक करेगा। ओके, so there are two types of unsupervised learning. First one is clustering and second one is association. तो ये हमारे unsupervised learning के अंदर में आते हैं। Now let's discuss the reinforcement learning. Reinforcement learning is a feedback based learning method in which learning agent gets a reward for each right action and get penalty for each wrong actions. मतलब यहाँ पे मशीन तो ऑटोमेटिकली वर्क करेगी, मतलब मशीन ऑटोमेटिकली आपका डेटा प्रोसेस करेगी। अगर मशीन प्रॉपर वे से अगर वर्क करती है, वो करेक्ट वे से अगर आपको आंसर देती है, फीडबैक देती है, तो आप उसको रिवॉर्ड करोगे। अगर वो कहीं गलती कर रही है तो आप उसको पेनाल्टी भी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मशीन और इंटेलिजेंस सिस्टम वर्क करेगा। The agent learn automatically with this feedback and improves the performance. In reinforcement learning, the agent interact with the environment and explores it. मतलब reinforcement learning में क्या होगा कि जो आपका डेटा होगा उसमें एजेंट इंटरेक्ट करते रहेगा, मशीन्स को गाइड करेगा कि हाँ भाई आप सही तरीके से लर्न कर रहे हो। अगर कहीं पे गलती हो रही है तो आप उसको पेनल्टी प्रोवाइड करोगे तो मशीन उस तरीके से उस डायरेक्शन में वर्क करना छोड़ देगी और सही डायरेक्शन में आ जाएगी। द गोल ऑफ एजेंट इज टू गेट द मोस्ट रिवॉर्ड पॉइंट एंड हेंस इट improves the performance. So that is nothing about the reinforcement learning. Now we have a different types of learning also. We have a rote learning, induction, clustering, analogy, discovery, genetic algorithms. These are the different types of machine learning. This is called as paradigms of machine learning. Rote learning is nothing about one-to-one mapping of inputs to store the representations. Learning by memorizations, association based storage and retrieval. So this is the rote learning. Now we also have a induction learning. It uses the specific example to reach general conclusions. We also have a clustering machine learning. It is unsupervised identical of natural groups of data. Analogy, it determines the correspondence between the two different representations. मतलब आप दो डेटा को कंपेयर करते हुए चलोगे कि क्या सही है और क्या गलत है। डिस्कवरी, दिस इज अगेन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. इट फाइंड्स अ स्पेसिफिक गोल एंड यहाँ पे गोल गिवन नहीं होगा, एक गोल को फाइंड आउट करना पड़ेगा. We also works on genetic algorithms. So it is an evaluationary search technique based on analogy of survival of the fittest one. ठीक है, मतलब जेनेटिक अल्गोरिदम्स के समय में हम क्या करते हैं, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वन, मतलब जो सबसे बेहतर नस्ल का है वो ही जिंदा रहेगा, इस तरीके से हम वर्क करेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट पैराडिगम्स ऑफ मशीन लर्निंग. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए और गेट एग्जामिनेशंस के लिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.